अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी राफेल किलर J-10C कमिंग टू बांग्लादेश, व्हाट्स इन इट। अच्छा, आजकल हम लोग न्यूज़ को बड़ी अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं कि डेवलपमेंट्स कितनी तेज़ी से हो रही हैं। कुछ वीडियोस हमने देखी हैं एयरफोर्स के ऊपर, बांग्लादेशी एयरफोर्स के ऊपर, इसी तरह आर्मी के ऊपर, लेकिन क्या क्या चीज़ें बदल रही हैं, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस सब के ऊपर बात करेंगे क्योंकि हम उसे बड़े अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलिए, इससे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हमें आपकी रिएक्टिंग नेबर्स। चले जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে আধুনিক প্রযুক্তির নতুন মাত্রায় নিয়ে যেতে সরকার সম্প্রতি চীনের সঙ্গে এক বিশাল সাময়িক চুক্তির পথে এগোচ্ছে। সম্ভাব্য পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশ রাফেল বিধ্বংসী 20টি J-10C চীনা যুদ্ধবিমান কিনতে পারে। এসব বিমান বিশ্বের অন্যতম আধুনিক শক্তিশালী মাল্টিরোল ফাইটার জেট হিসেবে পরিচিত। বিভিন্ন গণমাধ্যমের সূত্র অনুযায়ী এই চুক্তির আনুমানিক মূল্য প্রায় 2.2 বিলিয়ন মার্কিন ডলার। টাকায় হিসেব করলে যা দাঁড়ায় প্রায় 27,000 কোটি টাকা। 2027 সালের মধ্যে বাংলাদেশ এই যুদ্ধবিমানগুলো হাতে পাবে বলে জানানো হয়েছে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এই J-10C? কি এমন বিশেষত্ব আছে এই বিমানে? J-10C মূলত চীনের তৈরি এক অত্যাধুনিক মাল্টিরোল যুদ্ধবিমান। এটি নির্মাণ করেছে চেংদু এয়ারক্রাফট ইন্ডাস্ট্রি। আর চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি এয়ারফোর্সে দীর্ঘদিন ধরেই এই বিমানটি সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিমানটি 4.5 প্রজন্মের ফাইটার জেট, অর্থাৎ এতে এখনকার অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রায় সব সুবিধাই আছে, যেমন শক্তিশালী রাডার, দ্রুত প্রতিক্রিয়া, দীর্ঘ দূরত্বে আঘাত হানার সক্ষমতা এবং উন্নত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। চায়না সেন্ট্রাল টেলিভিশনের একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়, J-10C এর মধ্যে রয়েছে এসআর রেডার নামের উন্নত সেন্সর ব্যবস্থা, যা একসাথে অনেকগুলো লক্ষ্য শনাক্ত করতে পারে এবং শত্রুর রাডার থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখার সক্ষমতাও রাখে। এর নকশায় রয়েছে ক্যানাড ডেল্টা উইং, যা একে খুব দ্রুত দিক পরিবর্তনের সক্ষমতা দেয়। ডগফাইট বা কাছাকাছি বিমান যুদ্ধে এটি একটি বাড়তি সুবিধা। J-10C ঘন্টায় সর্বোচ্চ প্রায় 2400 কিলোমিটার গতিতেও উঠতে পারে, যা শব্দের গতির দ্বিগুণেরও বেশি। চাইনিজ ডিফেন্স রিভিউর তথ্য মতে J-10C একবার জ্বালানি নিয়ে প্রায় 1800 কিলোমিটার পর্যন্ত টানা উঠতে সক্ষম। এতে আছে আধুনিক ইঞ্জিন, যা দীর্ঘ সময় আকাশে টিকে থাকতে সাহায্য করে এবং দ্রুত গতিতে উড্ডয়ন ও অবতরণে সক্ষম। অস্ত্রশক্তির দিক দিয়ে J-10C নিঃসন্দেহে ভয়ঙ্কর। এতে ব্যবহার করা হয় PL-15 নামের দূরপাল্লার এয়ার টু এয়ার মিসাইল, যা 300 কিলোমিটার দূরের টার্গেটেও আঘাত হানতে পারে। এছাড়া কাছাকাছি যুদ্ধের জন্য রয়েছে PL-10 মিসাইল এবং 23 মিলিমিটার কামান। এই বিমানে লেজার নিয়ন্ত্রিত বোমা, আকাশ থেকে ভূমিতে হামলার অস্ত্র ও সমুদ্রের টার্গেট ধ্বংস করার মিসাইলও বহন করা যায়, অর্থাৎ এটি আকাশে ও ভূমিতে দুই ক্ষেত্রেই সমান কার্যকর। আল জাজিরা ও গ্লোবাল টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী 2025 সালে ভারত পাকিস্তান সীমান্তে এক সংক্ষিপ্ত বিমান সংঘর্ষে পাকিস্তান দাবি করেছিল যে তাদের J-10C বিমান ভারতের এক রাফেল ফাইটারকে PL-15 মিসাইল দিয়ে আঘাত করে ধ্বংস করেছে। যদিও ভারত ও রাফেল নির্মাতা ডেসল্ট এভিয়েশন এই দাবি অস্বীকার করে, তবে ঘটনাটি J-10C এর সক্ষমতা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। পাকিস্তান এয়ারফোর্সের তথ্য মতে J-10C এর রাডার ও বিয়ন্ড ভিজুয়াল রেঞ্জ মিসাইল সিস্টেম ভারতের রাফেলের সমতুল্য বা কিছু ক্ষেত্রে আরও উন্নত। সামরিক বিশেষজ্ঞদের ভাষায় দূরপাল্লার যুদ্ধ বা লং রেঞ্জ এয়ার টু এয়ার কমব্যাটে J-10C তার উন্নত সেন্সর ও PL-15 মিসাইলের কারণে বড় সুবিধা পায়। ফাইটার জেটের সবচেয়ে বড় শক্তি এর চালনা শক্তি বা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। ডিফেন্স নিউজের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, J-10C এর ক্যানাড উইং ডিজাইন ও উন্নত ফ্লাই বাই ওয়ার সিস্টেম একে অত্যন্ত দ্রুত ও চটপটে করে তুলেছে। কাছাকাছি যুদ্ধে এটি মুহূর্তেই দিক বদলাতে পারে, গতি কমিয়ে আবার দ্রুত বাড়াতেও পারে, যা ডগ ফাইটে একে খুব কার্যকর করে তুলেছে। অন্যদিকে এতে থাকা উন্নত ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেম শত্রুর মিসাইলের রাডারকে বিভ্রান্ত করতে পারে, যা আত্মরক্ষায় বড় ভূমিকা রাখে।
বিশেষজ্ঞদের মতে J-10C এখন চীনের অন্যতম সেরা যুদ্ধ বিমান। তবে যুক্তরাষ্ট্রের F-22 র্যাপটর বা F-35 লাইটনিং 2 এর মতো পঞ্চম প্রজন্মের স্টেলথ জেট নয়। তবুও এর উন্নত রেডার, সেন্সর ও মিসাইল সিস্টেম একে অনেক বেশি কার্যকর করেছে। রাশিয়ার Su-35 বা ভারতের রাফায়েলের সঙ্গে তুলনা করলে J-10C কিছু ক্ষেত্রে পিছিয়ে, যেমন রেঞ্জ ও ফুয়েল ক্যাপাসিটিতে, কিন্তু ইলেকট্রনিক সাপোর্ট ও মিসাইল প্রযুক্তিতে এটি সমান শক্তিশালী। চীন, পাকিস্তান বা মিশরের মতো দেশ ইতোমধ্যেই J-10C ব্যবহার করছে। সবকিছু ঠিক থাকলে বাংলাদেশও যোগ দিতে যাচ্ছে J-10C ক্লাবে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর হাতে J-10C আসলে দক্ষিণ এশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষায় এক নতুন ধরনের ভারসাম্য তৈরি হবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। ইমরান মাহমুদ, বাংলাভিশন। वेरी नाइस एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। और आप ये देखो कि मॉडर्न डे थ्रेट्स चेंज होते जा रहे हैं और उनको काउंटर करने के लिए अब फाइनली बांग्लादेश बहुत तेजी से अपनी एयरफोर्स को अपग्रेड कर रहा है। और साथ साथ हम ये देखते हैं कि लोकल और इंटरनेशनल न्यूज के अंदर भी हम इस बात का बहुत ज्यादा चर्चा सुनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें क्योंकि मॉडर्न डे थ्रेट्स जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, वैसे ही बैटलफील्ड के रूल्स भी चेंज हो गए। नए लेटेस्ट टेक की जो है रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई और इसी चीज पे हम देखते हैं कि मल्टीपल कंट्रीज जो है वो 4.5 जनरेशन फाइटर्स और स्टेल्थ फाइटर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। बिल्कुल इसी तरह ऐसा ही है। और यही चीज हम देखी कि बांग्लादेश भी इसी तरह बहुत सारे एयरक्राफ्ट को एक्वायर कर रहा है, जिसमें से J-10C तो एक एयरक्राफ्ट है जिसकी बात इस वीडियो में हुई, लेकिन उसके अलावा आप देखें यूरो फाइटर को इंक्लूड किया उन्होंने लिस्ट में। इसके अलावा JF-17 ब्लॉक 3 वो भी इंक्लूड है। और उसके अलावा आप देखें कई हेलीकॉप्टर्स वो ले रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट हेलीकॉप्टर्स, उनको भी अवेल कर रहे हैं। सो अब बात करते हैं J-10C और इस वीडियो के बारे में। और J-10C एक बहुत अच्छा जहाज है और अभी लेटेस्ट जो इंडो पाक वॉर हुई उसके अंदर पूरी दुनिया ने इसकी परफॉर्मेंस को देखा और कितना अच्छा इसने परफॉर्म किया। इसकी कैपेबिलिटीज पूरी दुनिया ने देखी है। और वो चीज अगर हम थोड़ी सी उसमें डिटेल में जाए तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिए इस एयरक्राफ्ट के बारे में, क्योंकि पर्सनली मुझे पसंद आ गया एयरक्राफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कि 4.5 जनरेशन है। और इसके अलावा अब सॉरी मैं पॉइंट्स अपने साथ साथ देखूंगा। इसके साथ साथ मैंने इसमें जो चीज देखी वो ये कि इसकी मैन्यूवरेबिलिटी और इसकी रेंज बड़ी कमाल की है। और सबसे बड़ा प्लस जो इस चीज के इस एयरक्राफ्ट का है वो इसके एडवांस एवियोनिक्स है। बहुत अच्छा रेडार सिस्टम है इसका, जिसकी वजह से एक्चुअली ये टॉप ऑफ द लाइन। अच्छा, इसके एरोडायनामिक्स भी बहुत अच्छे हैं, जो कि इसको बहुत हाई स्पीड में इजीली जो है ना अपनी पोजीशन टर्न करने के लिए इसको करते हैं। और बहुत ज्यादा हाई और लो स्पीड पे ये टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकता है इजीली। और ये चीज देखो कि ये तो हो गया ना इस तरफ का, लेकिन अगर आप इसके वेपन्स के साइज को कपल अप करो, जिसमें PL-15 है, तो इसके एयर टू एयर सुपीरियरिटी जो है वो इसके मिसाइल्स की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और वैसे ही ग्राउंड अटैक्स के लिए जो इसके LGBs है, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, वो भी बहुत अच्छी। तो इसका मतलब है कि ये इजीली एयर, लैंड और सी के अंदर अटैक कर सकता है, हर सिनेरियो के अंदर बहुत अच्छे से फिट करेगा। अच्छा, एक और चीज जो हमने सुनी वो ये कि J-10C की जो स्पीड है वो ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड है। और दूसरा ये सिंगल रिफ्यूलिंग के अंदर 1800 किलोमीटर जो है ना वो कवर करता है। और दूसरे नंबर पे आप ये देखो कि अगर कहीं पे ये लैग करता है राफेल या Su-35 के मुकाबले में, तो ये अपनी रेंज और फ्यूल कैपेसिटी के हिसाब से बिल्कुल इसी तरह से। और अगर देखा जाए हमारा ओपिनियन तो ये है कि ये बहुत अच्छी ऑप्शन है और बांग्लादेश एयरफोर्स अपने आप को इस तरह से अपग्रेड करेगी तो इससे ना सिर्फ एक इनका डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, एयर पावर के मुकाबले में जब देखें तो ये बैलेंस को न्यूट्रल करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, और बहुत सी हमने न्यूज में ये चीज भी सुनी कि भाई इंटर्म गवर्नमेंट है और वो इस तरह के डिसीजंस ले रही है, तो मेरा ख्याल है कि फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हो या इंटर्म गवर्नमेंट हो, देखना यह है कि आपकी कंट्री के लिए कौन से डिसीजंस बेहतर हैं। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि देखिए मुल्क के लिए जो भी चीज बेहतर है उसको सबको ही सपोर्ट करना चाहिए, सबको ही बैक करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से है। खैर, ये तो हमारा एक छोटा सा एनालिसिस था, जो हम न्यूज सुन रहे हैं आजकल उस हिसाब से हमने बात की। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। बाकी आप बताएं आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।